Hello students, today I will take a part of a chapter from class 10, area of circle, sector and segment. I have already started this chapter and I did 2 episodes from this chapter, and the third part is regarding a segment of a circle. segment क्या होता है, क्योंकि सेगमेंट, सेक्टर और एरिया तीनों मिला के प्रॉब्लम्स जो है बोर्ड में आता है, तो इसके बारे में तुम्हें अच्छे से सीखना होगा. यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गेन द कॉन्सेप्ट, क्या है सेगमेंट. क्लियर? सो आई एम स्टार्टिंग. First, I am drawing a circle with center O. This is a circle with center O. Now I am drawing a sector. This APB is an arc of the circle, and this whole portion is a sector of the circle. Now what about segment? If I join A and B, this is a chord. AB is a chord of the circle, and this AB chord divided the whole circle into two segments. This portion particularly is a segment, and rest of the portion is another segment. ये जो छोटा पोर्शन है ये है माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा पोर्शन है फ्रॉम दिस टू दिस एरिया, इसका नाम सपोज AQB. दो सेगमेंट है, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट. कॉर्ड जो है सर्कल को दो सेगमेंट में बांट दिया है, एक माइनर, एक मेजर सेगमेंट. क्लियर? हमें सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे वो आज हम सीखेंगे. लॉजिकली जो है हम कोई फॉर्मूला में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम दिखाएंगे कि कैसे ये फॉर्मूला बनता है. Now you know that O is a center, and AO and BO are two radii of the circle. So this AOB is a triangle, and it is called isosceles triangle. We know that when two adjacent sides are equal, the triangle is called isosceles triangle. So AO or OA and OB are two equal sides of the triangle AOB. So this is an isosceles triangle. Let us draw a perpendicular from the vertex O on AB. एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है जिसका नाम है OD, and from theorems what we have learned in class 9, OD is perpendicular which divides the isosceles triangle AOB into two parts. So we can assume that D is the mid portion of AB. D जो है ये AB का
मिडिल पॉइंट है। अब कैसे मिडिल पॉइंट है, इसका कॉन्ग्रुएंसी जो है वो क्लास 9 सर्कल में होगा, वो एपिसोड जो है तुम लोग देख लेना। टुडे आई विल टेक दिस whole angle as theta, and this perpendicular has divided the angle into two parts, two equal parts, theta by 2 and theta by 2. Let this OA be R. So it is also R. Now, what about sine theta by 2? Sine theta by 2. If we assume this triangle like this, that means if we tilt this, this is the base, this is the perpendicular, and this is hypotenuse. Sine theta, we know sine of any angle equals to perpendicular by hypotenuse. So AD by AO. So AD equals to AO, that means R. So R sine theta by 2. And what about cos theta by 2? कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, AD, हाइपोटेन्यूज क्या है, AO। नो, बेस इज OD, बेस इज OD। So OD becomes R cos theta by 2. We have solved the base and the perpendicular. Now we can find the area. For that, area of AOB equals to half into base AB into height OD. Now AB has been divided into two equal parts. So instead of AB, we can write 2AD. And OD. So it is half into 2 R sine theta by 2 and OD R cos theta by 2. So R square sine theta by 2 cos theta by 2. कोई स्टूडेंट पूछेगा सर बुक में तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 है ही नहीं, वहां पे तो साइन थीटा दिया हुआ है। यस, दैट इज ऑल्सो राइट, बट साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा कैसे बनता है? फॉर दैट वी हैव टू डिस्कस अ फॉर्मूला फ्रॉम क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री, बिकॉज इन मल्टीपल चैप्टर मल्टीपल एंगल्स, 11 का जो ट्रिगोनोमेट्री बुक है उसमें मल्टीपल एंगल्स है और उसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो साइन थीटा क्या होगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सो इफ वी राइट हियर हाफ, दैट मीन्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा साइन थीटा। तब फॉर्मूला आएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर?
तो 11 का फॉर्मूला हमें इनपुट यहाँ पे करना होगा, छोड़ दो उसे, याद हो नहीं हो, बेटर टू राइट आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये कौन क्या है? दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है? ये पूरा जो सेक्टर है इसका एरिया क्या है? सेक्टर का एरिया है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है सेक्टर का एरिया टोटल। तो सेक्टर का एरिया से अगर हम ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस दिस वन आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसे माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट? मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? द एरिया ऑफ द होल सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। माइनर सेगमेंट हम कैसे निकालें? पाई आर स्क्वायर से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी कैन गेट द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये सेगमेंट का जो फॉर्मूला है, अभी तुमको लगेगा कि भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब इतना कैलकुलेशन हम कैसे बनाए, कैसे याद रखें, बट इट इज इजी। आई विल टेल यू द अप्रोच, कैसे तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उसका अप्रोच हम बताएंगे यहाँ पे। तब तुम्हें लगेगा कि नहीं ये टफ नहीं है, ये इजी है, आई कैन रिमेंबर द प्रॉब्लम, आई कैन रिमेंबर द फॉर्मूला एंड आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि ये पॉजिटिव एटीट्यूड बोर्ड एग्जाम में जरूरी है। क्लियर? आई विल डिस्कस फॉर्मूला, नो आई विल नाउ discuss some problems. फर्स्ट प्रॉब्लम है find the area of the segment of a circle given that the angle of the sector is 120 degree and the radius of the circle is 21 centimeter. Take pi 22/7. For solving any problem, you have to read the question twice, thrice. 2 से 3 बार तुम क्वेश्चन को पढ़ो
और पूछा क्या गया है उसको तुम पहले देखो कि what has been asked in the problem, क्या क्वेश्चन है और क्या क्या इंफॉर्मेशन है। बच्चे जो है ना क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ते, इसलिए प्रॉब्लम में गलती होता है। हमें निकालना होगा एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब मेजर माइनर कुछ नहीं बताया। एंगल ऑफ सेक्टर 120 डिग्री है, यानी ये एंगल ऑफ सेक्टर 120 डिग्री है, मतलब दिस पोर्शन इज 120 डिग्री। जैसे इज टोटली सेमी सर्कल विच इज 180 डिग्री, यानी ये 120 डिग्री जैसे बोला गया है, इसका मतलब है कि ये माइनर सेगमेंट का ही एरिया निकालना होगा। रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, थीटा है 120 डिग्री, रेडियस है 21 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू है जो 22/7, वो हम नहीं लिखेंगे। हमें निकालना है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, दिस वन। तो एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा गया है इसलिए हम सेगमेंट लिखेंगे, दैट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 120 बाय 360 पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 इंटू थीटा 120, तो थीटा बाई 2 60, साइन 60 कॉस 60। साइन 60 का वैल्यू कितना है, क्लास 10 में ही ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर में हम बता दिए हैं। साइन 60 इज √3/2 एंड कॉस 60 इज हाफ। First we take common 21 square. Cancel this portion, 1/3, 22/7 minus √3/4. Now this is 441. ये क्या होगा, 21 इंटू 4, तो 4 इंटू 22 दैट इज 88 माइनस 21 √3। अब √3 का जो वैल्यू है 1.732, वो यहाँ पे हम बैठाएंगे, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 से सब्ट्रैक्ट करके, फिर 21 नीचे है, इजीली कैंसिल आउट होगा यहाँ से क्योंकि यहाँ पे 21 है, तो हम लोग वी कैन राइट 21। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1.732 इंटू 21, $36.372। तो 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, $51.628, 51.628। ये 21 और यहाँ से 20 अंत कट गया, बचा है 21 और नीचे 4। लास्ट में 8 है तो 4 से डिवाइड होगा, हो सकता है, चांसेस है।
सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट निकल जाएगा। देखो ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें, खाली कैलकुलेशन जो है इसको स्टेप बाय स्टेप अटेंटिवली करो तो ये कैलकुलेशन जो है इजी बन जाएगा। मल्टीप्लाई बड़ा बड़ा मत बनाओ क्योंकि उसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। कॉमन ले लो और कैंसिल करो, नंबर्स को लिखो, मल्टीप्लाई करो मत करो, लास्ट में तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। और जहाँ जरूरी है, जैसे यहाँ जरूरी है वहाँ मल्टीप्लाई करो, लेकिन जहाँ जरूरी नहीं है खाली मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे नंबर्स को रख दो, डिवाइड करो, कैंसिल करो, कुछ भी करके तुम जो है आंसर को लाओ। अल्टीमेट यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन है जो कि जरूरी है, मल्टीप्लाई करके तुम ला सकते हो। क्लियर? अब मिटाते हैं इसको। Problem number 2. A chord AB of a circle of radius 10 centimeter makes a right angle at the center of the circle. Find the area of the major segment and minor segment. So थीटा हैज बीन मेंशन, थीटा का वैल्यू 3.14 हमें लेना है। सो we'll first find out the area of minor segment. For that, the information given are radius 10 centimeter or theta 90 degree. Area of minor segment we have to find out. आर स्क्वायर कॉमन है इसलिए हम इसको बाहर निकाल दिए। थीटा इज 90 डिग्री, सो थीटा बाई 2 इज 45 डिग्री, और आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 100। So 1 by 2 is common.
अप्रोच जो है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन ही नहीं किया है, जस्ट कॉमन लेके उसको छोटा कर दिया है। अल्टीमेटली जस्ट यहाँ पे 57/2 28.5 यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है। बाकी स्टेट में देखो कहीं पे भी हम कुछ नहीं किए, खाली कॉमन लिए, सब्ट्रैक्ट किए, फिर यहाँ पे देखो 0.57 जो है इसको ऐसे लिखे, कैंसिल कर दिए, 57/2 आता है। फिर ये दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच। ये अप्रोच जो है अगर तुम सीख जाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कैलकुलेशन में एटलीस्ट। सो आई हैव फाइंड आउट द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। वो कैसे होगा, सर्कल के एरिया से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ शॉर्टकट है नहीं, सिंपली 3.14 से 441 मल्टीप्लाई करो, जो भी फिगर आता है हम दिखा देते हैं मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्ट करो, निकल जाएगा। R², ओ R10 है, I have done a mistake. It is not 441, it is 100. It is radius is 10, so R² is 100. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। $285.5। क्लियर? थोड़ा ध्यान से करना, मेरा भी एक गलती हो गया। R जो है इसको हम 21 पकड़ लिए थे, आगे वाला सम का जो है, लेकिन है वो 10। ठीक है, इट्स ओके, देख लो सही है। नेक्स्ट, problem number 3. A chord AB of a circle of radius 15 centimeter
मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस 15, थीटा 60 डिग्री। Find the area of the major and minor segment. Take pi equals to 3.14 and root 3 equals to 1.73. क्वेश्चन में जैसा इंफॉर्मेशन है तुम्हें वैसा ही करना होगा। रूट 3 का वैल्यू 1.732 होता है, लेकिन यहाँ पे 1.73 गिवन, तो तुमको 1.73 ही पकड़ना होगा। पाई का वैल्यू 3.14 है, नॉट 22/7, 3.14, क्योंकि वैसे ही आंसर जो है आएगा। अगर तुम अपना हिसाब से करोगे, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको बैठाओगे, तो गलत आंसर आ जाएगा। centimeter square. So this is area of minor segment. And what about major segment? Area of circle निकालो. ये होगा एरिया ऑफ सर्कल, मल्टीप्लाई करो जैसे मैंने मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई किया है वैसे मल्टीप्लाई करो, एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा, फिर वहां से ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो है निकल जाएगा। इतना कैलकुलेशन जो है थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मार्क्स तो भी ज़्यादा होगा, 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये सब इसी टाइप का। इससे तो और जो फिगर आएगा, फिगर में से तुमको निकालना पड़ेगा, यानी और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन माथा दिमाग जो है इसको ठंडा रख के ये सॉल्व करना। अगर कैलकुलेशन में कहीं इधर उधर हो गया तो पूरा गया। नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 4। 4 नंबर प्रॉब्लम में क्या है? In a circle of radius 21 centimeter, arc subtends an angle of 60 degree at the center. Theta is 60 degree. Find the length of the arc. Area of the sector formed by the arc. Area of the segment formed by the corresponding chord of the arc. तो पहले बहुत कुछ निकालना होगा। सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। उससे पहले तुमको आर्क जो है वो निकालना पड़ेगा। आर्क होता है क्या? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर एल। थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर 60 by 360 into 2. I think pi has not been mentioned here. Pi जो है वहाँ पे इसमें मेंशन नहीं है, तो pi जो है हम लोग 22/7 ही लेंगे। सेंटीमीटर आर्क एपीबी निकल गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर,
segment. ये ड्राइंग नीचे आ रहा है तो ठीक। थीटा मतलब 60/360 यानी 1/6, 22/7, sin θ/2 sin 30, cos θ/2 cos 30, sin 30 is half, cos 30 is √3/2 यानी √3/4, r square is 441, अब कैलकुलेट करके निकालो, वो हम तुम पे ही छोड़ रहे हैं, जो भी ये क्लास फॉलो करते हो उस कैलकुलेशन से वैल्यू निकालो। तो ये हो गया माइनर सेगमेंट का एरिया। अब निकालने बोला है दोनों एरिया ऑफ द सेगमेंट, यानी दोनों माइनर मेजर दोनों निकालना पड़ेगा। नहीं सॉरी एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द आर्क। माइनर सेगमेंट ही निकालना पड़ेगा। ये कॉर्ड जो सेगमेंट बनाया है ये इस सेक्टर में ये कॉर्ड इसी सेगमेंट को बनाया है। इट हैज मेड द सेगमेंट माइनर सेगमेंट, so we have to find the minor segment only, and that is given to you. You just calculate this. You can place √3 here as 1.732 because √3 का वैल्यू जो है वो मेंशन नहीं है, तो तुम लोग 1.732 ले सकते हो because it will be easy to divide it by 4, और कुछ नहीं है ऐसा, कैंसिल कर सकते हो फिर बनाओ। क्लियर? I will go to next problem. This is 4. I have not written here, but this is 4. मैं अपना वीडियो जो है उसमें कभी नहीं बोलूँगा कि कोई शॉर्टकट है 2 दिन में बन जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू फॉलो ए शेड्यूल, आफ्टर दैट यू कैन सक्सीड इन एग्जाम। अप्रैल से पढ़ना होगा फरवरी तक, तब जाके तुम अच्छे रिजल्ट कर पाओगे। ऐसा कुछ शॉर्टकट होता नहीं है, कुछ भी नहीं। तो शेड्यूल में देखो मैंने जो स्टेप्स बनाते हैं, वीडियो जो है वो पूरा फॉलो करो, क्योंकि प्रोसेस जो है उस मेरे हिसाब से मतलब जैसे मैं बनाता हूँ वैसे ही तुम लोग बनाओ अपने कॉपी में, ठीक है। आई एम डिस्कसिंग द राइट अप्रोच बिकॉज यू विल गेट फुल मार्क्स इफ यू फॉलो माई अप्रोच। अगर तुम मेरे अप्रोच को फॉलो करते हो तब तुम्हें फुल मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। बोर्ड एग्जाम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बेसिक होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले तुम्हें बोर्ड एग्जाम पास करना पड़ता है। 9, 10, 11, 12 का जो क्लासेस का जो एग्जाम होता है वो अगर तुम ठीक से नहीं करोगे, वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, तुम कभी कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिव में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। यू हैव टू डू द चैप्टर्स वेरी केयरफुली। तुम्हें पूरा चैप्टर करना होगा। कोई एक एनसीईआरटी बुक जो है उसको थॉरोली फॉलो करो, उसका हर एक साम बनाओ। एग्जाम्पल में जो है, एक्सरसाइज में जो है,
एग्जाम्पलर्स जो प्रॉब्लम्स है सब बनाओ। उसके साथ मार्केट में बहुत सारा रेफरेंस बुक अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे बुक है, कोई भी एक बुक लेके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू प्रैक्टिस। दिमाग जो है प्रैक्टिस से ही रेडी होगा, ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है। क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 5, a chord of a circle of radius 10 subtends a right angle at the center. Find the area of the minor sector, area of the minor segment, area of the major sector, area of the major segment. Use pi equal to 3.14. Minor sector, minor segment, major sector का area, major segment का area. पहले area of minor sector. पाई का वैल्यू शायद मेंशन है 3.14। ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? एरिया ऑफ सर्कल ये वाला है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर दोनों निकल गया। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पाई 90 by 360 1/4। थीटा 90, थीटा बाई 2 होगा 45, साइन 45 कॉस 45, 1/√2 इंटू 1/√2 दैट मीन्स 1/2।
314 का हाफ होता है 57, उसका हाफ होता है 28.5। तो ये जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया ये वाला है। अब एरिया ऑफ सर्कल है 314, तो एरिया ऑफ सर्कल 314 माइनस 28.5, शायद 285.5 आएगा, वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मतलब ये वाला छोड़ के ये पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया मैंने अपने ही मुंह से बता दिया है। यू जस्ट कैलकुलेट, मतलब कि राइट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू 314 माइनस 28.5 इक्वल टू 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसे फिगर आ जाए तो इजी है, लेकिन एग्जाम जो है इससे थोड़ा सा टिपिकल फिगर, यानी डाटा जो है थीटा की जगह 90 की जगह 120 150 ऐसे कुछ होगा, और यहाँ पे 10 है तो वहाँ 15 होगा 17 होगा, बस कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। बट यू हैव टू डू, तुम्हें करना होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस। तो आज हम 5 सम बनाए हैं। इसका जो थर्ड एपिसोड, या नहीं, ये तो थर्ड एपिसोड है। फोर्थ एपिसोड में फिगर रिलेटेड प्रॉब्लम में हम जाएंगे, जो कि वो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन वाला जो है वो सब मिलके हम प्रॉब्लम बनाएंगे। क्लियर? आज यहीं तक।